Hello everyone and welcome to our SST class. So today we are going to start with the new topic of our democratic politics. Okay, and the name of our topic is confronting marginalization, right? So in the previous topic we have seen what is marginalization, and we have seen two different groups involved in marginalization, or the groups which have been marginalized. Okay, but in this topic it's very important topic, and in this topic we are going to see that how these marginalized group are facing the problems, okay, and how they are going against it. Okay, they are fighting for it. Okay, they are fighting for their fundamental rights. So ये सारी चीज़ें अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. So be careful and be attentive, and this video is the first part of our topic. हमने जो है इस टॉपिक को two different parts में divide किया है, and in this video you are going to see few points. Okay, so let's start with the topic, right? See, let's go with the introduction. First, what I'll do, as usual, I'll read everything and then I'll explain it to you. Okay? So, let's start. Be careful, okay? And be attentive too. In the last chapter, you read about the discrimination and inequality issues experienced by two different groups. Even though they do not have much power in society, these groups have struggled, fought, and protested against the dominating groups. They have adopted different strategies in order to overcome this situation in this long struggle. Economic upliftment, religious solace, education, and self-improvement are few ways through which the minorities are trying to improve their social conditions. See, you have read it in a previous topic. We have learnt it, right? हमने पढ़े हैं, हमको मालूम है कि previous topic में जो marginalized group थे उनको क्या क्या problems होती थी, है ना? Do you remember the situation of दादू? How दादू was forced to leave his place? है ना, कि जो डोमिनेटिंग ग्रुप्स थे, वो डोमिनेटिंग ग्रुप्स ने जो है, जो दलित या जो आदिवासी थे, उन लोगों को कैसे प्रॉब्लम को फेस करना या कैसे प्रॉब्लम में फंसा दिया था या प्रॉब्लम में डाल दिया था. बट नाउ दिस पीपल, दिस माइनॉरिटी ग्रुप्स, दे आर ओवरकमिंग विद देयर सिचुएशंस. वो अपने सिचुएशन से, वो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे बाय एजुकेटिंग देमसेल्फ, बाय इम्प्रूविंग देयर फाइनेंशियल कंडीशंस, और जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स थे अपने आप को इम्प्रूव करके वो उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम से ओवरकम कर रहे हैं. दैट इज नथिंग बट कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. ओके, अब वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें अपन इस टॉपिक में देखने वाले हैं. लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स, दैट व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक. हमको इस टॉपिक से क्या सीखने मिलने वाला है, क्या समझ में आने वाला है. लेट्स सी the ways, what you are going to learn in this topic, the ways minorities have challenged the existing inequalities that they have had to face. The chapter explains how marginalized communities can take the help of the constitution in order to win their struggles. We will also see how the government has been making different efforts in formulating policies so that these minority groups could be uplifted. Now see, not only these people, हमको इस टॉपिक से क्या क्या पता चलने वाला है कि how these people, how they are struggling for themselves. Okay, वो अपने इस स्ट्रगल को कैसे जारी रख रहे, how they are taking help of Indian Constitution, वो Indian Constitution के जितने भी laws है, jurisdiction से, उसकी कैसे हेल्प ले रहे हैं, ये भी हम इस टॉपिक में से पढ़ेंगे. एंड हाउ गवर्नमेंट इज फॉर्मुलेटिंग न्यू पॉलिसीज. गवर्नमेंट भी बहुत सारे नए नए पॉलिसीज बना रही है ताकि ये जो बिछड़ा हुआ समाज है, ओके, या जो बैकवर्ड क्लास है, या जो दलित है, या जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है, इनको भी अपलिफ्ट कैसे किया जाए. दैट इवन गवर्नमेंट इज ऑल्सो फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज फॉर इट. Okay, so this was quite introduction of the topic and a learning outcome of the topic. Now let's start with the main point of the topic. Okay, so be attentive and listen it carefully, and feel free to approach me if you didn't understand anything. Fine, so let's go to the screen. First is invoking fundamental rights. Actually invoking fundamental rights का मतलब क्या है? Okay, it means to draw.
ओके मतलब क्या है कि भाई जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो अपना अधिकार कैसे वापस लेना है या उस अधिकार को अपनी तरफ कैसे खींच के लेना है. व्हाई दोज पीपल आर गोइंग टू फाइट फॉर देयर अधिकार और फाइट फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स. वो क्यों लड़ने वाले हैं? क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट्स को किसी ने खत्म कर दिया है. सो जस्ट दे वांटेड इट बैक. तो उसके लिए वो क्या हेल्प ले रहे, किसकी ले रहे हैं? ओके सो हु these Dalits and the minority groups. Okay, now let's see what it means to invoke the fundamental rights. The Constitution of India has certain principles on whose basis the country is democratic today. The fundamental rights are another part of the Indian Constitution that are available for every Indian citizen on an equal basis. The marginalized communities of India are drawn to such rights in two forms. What are those forms? As they insist on the fundamental right provided to them by the Indian Constitution, they force the government of India to recognize the cases of injustice that they are facing. They have made a pressure on the government to enforce such laws. देखो अभी होता कैसे है, एज बीइंग एन इंडियन सिटीजन्स, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, ही और शी हैज़ the fundamental right, okay, and not a single person can take away those fundamental right from the person. We have seen in the previous topic कि अगर कोई किसी का भी fundamental right तोड़ रहा है तो जिसके rights टूट रहे हैं या जिसको वो rights नहीं मिल रहे हैं, that particular person can approach court, can file a case in the court, right? So in the same way दिस पीपल, दिस माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट की या वो जुरिस्डिक्शन की या लॉ की ही मदद से वो क्या कर रहे हैं कि अपने फंडामेंटल राइट्स वापस ले रहे हैं. नाउ हाउ दे आर स्पीकिंग टू द गवर्नमेंट, बाय स्पीकिंग टू द गवर्नमेंट, बाय अरेंजिंग रैलीज. ओके, वो रैलीज निकाल रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं. ओके, एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट के पास से मांग रहे. क्यों मांग रहे और कैसे मांग रहे? दे हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दिस एवरीथिंग हैज बीन मेंशन इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की हुई है, तो इसीलिए वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही लॉज बनाओ. Who are saying, and to whom? These people, minority groups are saying to the government को बोला जा रहा है. And see, on just this basis, यही प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारी कंट्री, हमारा देश इंडिया, इसको डेमोक्रेटिक कंट्री भी कहा जाता है. और हम डाइवर्सिफाइड है, सो वी नीड टू मेंटेन दी डेमोक्रेसी. और अब गवर्नमेंट ने भी क्या क्या किया है, देखो कौन कौन से लॉज है. सो फर्स्ट वन इज आर्टिकल 17. हम आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 पढ़ेंगे. ओके, तो आर्टिकल 17 का मतलब क्या है? आर्टिकल 17 इट हेल्प्स टू अबॉलिश द अनटचेबिलिटी. इट मीन्स दैट no one can force the Dalits or any other person, okay, not only Dalit, okay, from not entering temples, educating themselves. If they face untouchability, the government would not allow this. It is a punishable crime. And what article 15 says? article 15 ये बताता है कि किसी भी बंदे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए on the basis of the religion, caste, color या जो भी है. okay, किसी भी चीज़ की वजह से, you can see in the image, right, कि एक बच्ची को जो है अलग किया गया है. नाउ इट वुड बी द केस कि वो कोई और रिलीजन की होगी, कास्ट से बिलोंग करती होगी या कुछ और प्रॉब्लम होगा, बट दिस शुड नॉट बी द केस. आर्टिकल 15 ये बताता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए. आर्टिकल 17 क्या बताता है? इट एंश्योर्स द अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी. ओके, समझ में आ गया इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स? गुड. इफ नॉट देन फील फ्री टू अप्रोच मी. ओके, लेट्स मूव अहेड. Now, what are the laws for marginalized communities or marginalized societies or marginalized group? Government ने क्या क्या laws बनाए हैं? Okay, देखो, let's see. The government of India has come up with different laws to protect the Indian citizens. There are different ways through which action is taken. To protect the marginalized section, there are several policies and laws. There are various ways through which these schemes or policies emerge, like by understanding surveys or by setting up government committees. These policies are promoted by the government so that these specific groups can get opportunities. देखो
यूजुअली होता कैसे है, गवर्नमेंट ये जो सारे लॉज बनाती है, ये लॉज क्यों बना रही है, ताकि जो है हम कौन से देश में हैं, हम इंडिया में हैं, वी आर लिविंग इन इंडिया एंड इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ऊपर से डाइवर्सिफाइड भी है कि बहुत अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं हमारे यहाँ पर हमारे देश में रह रहे हैं. ओके, सो व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट, व्हाट आर गवर्नमेंट एंश्योर्स कि हमारे देश में किसी भी बंदे या बंदी का हक मारा न जाए. ओके, सो दिस there are different ways through which government is taking an action. Okay, by what government is doing, government is listening to the people, government is going understanding the problems of the people, और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक्ट कर रहा है. वो जो है लोगों के सर्वेज को समझ रहा है, लोगों की प्रॉब्लम को समझ रही है ना, कौन, गवर्नमेंट समझ रही है. एंड देन गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग. Why government is promoting? Because this particular group will also get an opportunity to talk, to feel free, okay, and to approach the people as a normal common man, right? Okay, so this was about the laws of laws for marginalized society or marginalized group. Now how the government is promoting it. देखो social justice को government कैसे promote कर रही है. एक आपको पता होगा रिजर्वेशन है ना. लेट्स सी व्हाट इज इट. ओके, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स are creating schemes which are implemented in tribal areas or places where Dalit population resides. The best example is that the government provides subsidized or free hostel facilities for those students belonging to Dalit or Adivasi communities. Through this, they can get educational facilities which are not available in their areas. The government has also implemented a few laws in order to prevent inequality present in the system. One such policy is reservation, which is highly significant for these people. देखो गवर्नमेंट बहुत अलग अलग तरीके के स्टेप्स ले रही है. ओके, नाउ व्हाई गवर्नमेंट इज टेकिंग सच स्टेप्स, ताकि जो दलित लोग हैं, हम अभी दलित के बारे में ही पढ़ रहे हैं, दलित या आदिवासी जो लोग हैं, इवन दे विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेटेड, टू गेट क्वालिफाइड. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडाइज्ड फूड्स, सब्सिडाइज्ड हॉस्टल फैसिलिटीज दे रही है गवर्नमेंट. सब्सिडाइज्ड हॉस्टल फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ द फीस इज 1000 रुपीज़, सो 1000 में जो है उनको वो फी पे करने के बाद उनको एक अलग तरीके से इनटू देयर बैंक अकाउंट 1000 का जो है कुछ रिफंड अमाउंट मिलती है. इट वुड बी 600, इट वुड बी 500, है ना. सो वो 1000 का अब उनकी फीस कितनी भी 400 और 500. सो ऐसी उनको फैसिलिटीज देकर गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग देम, प्रोमोटिंग एजुकेशन अमंग देम. गवर्नमेंट उनको बता रही है कि आप जो है एजुकेट हो जाओ, एजुकेशन हासिल कर लो. आपके लिए उस पैसे को, जो बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके लिए उस पैसे को कम किया गया है. सो डोंट स्टेप बैक, गो एंड एक्वायर द नॉलेज. ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, प्रोमोट कर रही है. एंड वन अनदर एग्जाम्पल इज रिजर्वेशन. रिजर्वेशन में कैसा है, इवन नाउ अलग अलग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, ईबीसीज, ये अलग अलग कास्ट के लोगों को और माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिजर्वेशन बना दिया है. रिजर्वेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर परसेंट ऑफ द सीट्स, और क्या बोलते हैं उसको, सीट्स वुड बी रिजर्व्ड इन डिफरेंट सेक्शंस. अगर एजुकेशन के फील्ड में जाओ तो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में जो है इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अलग माइनॉरिटीज़ के लिए जो है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ परसेंट क्या रहती है, सीट्स रिजर्व रहते हैं. ओके, सो व्हाई गवर्नमेंट इज टेकिंग सच स्टेप्स, सो दैट द पीपल, दोज हु आर फीलिंग दैट दे आर बैकवर्ड, और उनको उनकी कास्ट की वजह से जो है ये सारी चीज़ें एंजॉय करने नहीं मिल रही है, तो उन लोगों के लिए जो है ये आरक्षण है, या फिर जो है उनको एजुकेशन को उनके नज़दीक प्रमोट किया जा रहा है बाय रिड्यूसिंग देयर फीस, बाय गिविंग देम सम सब्सिडीज, बाय सैंक्शनिंग देम सम अदर स्कॉलरशिप्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग जस्ट टू प्रोवाइड द सोशल जस्टिस. Cleared? So what we will do, we will stop it here only. Okay, and this was for the day.
आज के लिए इतना ही अपन समझते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो दैट इज डे आफ्टर टुमारो व्हाट विल सी, हम आगे का जो पार्ट है, जैसे ये रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे काम करता है और फिर जो है उसके बेनिफिट्स कैसे मिले, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। ओके, टिल दैट टाइम हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय, टेक केयर।